इस वक्त की राजधानी काहिरा की दिखा रहे हैं। काहिरा पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 दिवसीय राष्ट्रीय दौरे पर मिस्र पहुंचे हैं और 1997 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली मिस्र की यात्रा है, राजकीय यात्रा है। कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, कई समझौतों पर सहमति बनने की उम्मीद यहाँ मिस्र में। रक्षा समझौतों पर, इसके अलावा कारोबारी समझौते होने की उम्मीद। अब्दुल रहमान अल सीसी के निमंत्रण पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र। 11वीं सदी की एक मस्जिद अल हकीम का भी दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां दाऊद बोहरा समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों ने ही इस हकीम मस्जिद का जीर्णोद्धार कराया। और ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री पहुंचे, काहिरा पहुंचे, वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर जिस तरह से पेश किया गया उनको, तस्वीरें आप देख सकते हैं। इससे पहले 3 दिन की यात्रा पर अमेरिका में 3 दिन की यात्रा हुई। इसके बाद मिस्र पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री। 2 दिवसीय की यात्रा है। अमेरिका में भी जोरदार स्वागत वहां पर देखने मिला। काफी क्रेज प्रधानमंत्री को लेकर वहां पर अमेरिकियों में भी था। इसके अलावा जो प्रवासी भारतीय हैं उनमें भी देखने को मिला। और अमेरिका भारत के जो संबंध, कई चर्चाएं होती थी, अलग अलग तरह की चर्चाएं होती थी, लेकिन माना जाए कि ये जो यात्रा प्रधानमंत्री की अमेरिका की थी, इससे एक नया अध्याय शुरू हुआ है भारत और अमेरिका की दोस्ती का। पैशन होता है फिल्म स्टार से मिलने का, हमें पैशन है इंडियंस को यहाँ पे अपने पीएम को मिलने का। इट्स दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग टुडे। अगर कोई फिल्म स्टार खड़ा कर दें और पीएम, तो पहले हम पीएम की तरफ भागेंगे अपने। वी लव हिम सो मच, ही इज हीरो फॉर अस एक्चुअली। वैसे तो यहाँ पे इंडिया को बहुत लोग लव करते हैं, सब इंडियंस को बहुत ज़्यादा। हमें कभी फील नहीं होने देते कि हम किसी दूसरी कंट्री में हैं। बट यस, पीएम के आने के बाद जो भी वेंचर्स हमारे होंगे नए, हमारे सीसी गए थे वहाँ पे, उनको भी बहुत हॉस्पिटैलिटी वार्मथ मिली, जो हमारे पीएम को भी मिलेगी यहाँ पे। और आई थिंक बहुत ही अच्छा होने वाला है दोनों कंट्रीज़ के लिए, फॉर बिजनेस, फॉर एवरीथिंग। आई पर्सनली फील इट्स रियली अ प्राउड मोमेंट। My name is Alka Walia. I am here for the last 17 years in Egypt. But I think this is super special. This is the first visit of an Indian Prime Minister after 1997. So this becomes extra special. And I feel that this is like we've been very lucky to have him during our stay here. So like excitement levels are like beyond explanation. We're just looking forward to seeing him and just having him here on soil for Egypt. I'm so glad that I've been here all these years and we're going to see Prime Minister on the soil. For me, this country is as good as my own country because I've been here so long. And with Modi ji coming, it's like I'm having two countries together at one soil. So it's fantastic. And we are all very excited and happy that he's here. There around, in the morning, just now we have around 25 ladies, around 11 children. Representing community, different age groups of the boys. We are having for the first time a round table between Honorable Prime Minister and the Egyptian Prime Minister. After President Sisi's highly successful visit to India in January 2023, both countries agreed to elevate the relations to a strategic partnership. And on his return, President Sisi constituted a special India unit in his cabinet, which consists of senior ministers, and they have been tasked to improve relations with India. So Prime Minister will be having a meeting with the India unit
And I'm sure that this will lead to very concrete outcomes and further deepen bilateral relations. The next day, Prime Minister will also be paying a visit to the historic Al-Hakim Mosque, which was built in the 11th century during the Fatimid dynasty. But very interestingly, our Bohra community is descended from the Fatimid dynasty, and they have renovated the mosque extensively from the 1970s and still maintaining it to date. After that, Honorable Prime Minister will visit the Heliopolis war memorial, where Indian soldiers who had sacrificed their lives to defend Egypt are remembered. The Heliopolis War Memorial is particularly significant because 3,799 Indian soldiers who died in World War I. It is an और सुन रहे थे ये बयान मिस्र में भारतीय राजदूत का। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की मिस्र की ये पहली यात्रा है। इसके साथ ही राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के निमंत्रण पर मिस्र की 2 दिवसीय राष्ट्रीय यात्रा 1997 के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा भी यह है। शेड्यूल के मुताबिक पीएम मोदी थोड़ी ही देर में मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंच गए हैं। इसके बाद रात करीब 8:40 पर प्रधानमंत्री मोदी की मिस्र के मुस्तफा मैडबॉली के साथ बैठक होगी। बैठक के बाद पीएम मोदी भारतीय समुदाय से बातचीत करेंगे। रात तकरीबन 10:20 पर प्रधानमंत्री मोदी मिस्र के ग्रैंड मुफ्ती से मिलेंगे और फिर मिस्र के विचारकों के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र की अपनी पहली यात्रा के दौरान दाऊदी बोहरा समुदाय की मदद से बहाल की गई 11वीं सदी की अल हकीम मस्जिद का भी दौरा करेंगे। पीएम 25 जून को दोपहर करीब 1 बजे मस्जिद जाएंगे। इसके बाद दोपहर करीब 2 बजे हेलियोपोलिस शहीद स्मारक जाने का भी उनका प्रोग्राम है। इस दौरान प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिस्र के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को वो श्रद्धांजलि देंगे। बता दें कि स्मारक को राष्ट्रमंडल की ओर से बनवाया गया है। ये उन 3,799 भारतीय सैनिकों का स्मारक है जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिस्र में अलग अलग लड़ाइयों में अपने प्राणों की आहुति दी। हेलियोपोलिस शहीद स्मारक का दौरा करने के बाद पीएम मोदी मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी से भी मिस्र प्रेसिडेंसी में मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोनों नेता एमओयू पर हस्ताक्षर करेंगे और शाम तकरीबन 5:30 बजे एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पीएम मोदी 25 जून की शाम करीब 6:30 बजे नई दिल्ली के लिए यहां से रवाना हो जाएंगे। और हमारे साथ खास मेहमान हैं, उनसे भी हम इस दौरे के लेकर बातचीत करेंगे। आसिफ रमीज दाऊदी दुबई से अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, हमारे साथ हैं। नेहा शर्मा जी हमारे साथ हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार। मुफ्ती शमून कासमी हमारे साथ हैं, जाने माने धर्मगुरु हैं। कर्नल रिटायर्ड शिदान सिंह जी हमारे साथ हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट हैं जाने माने। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट। संजय राणा विदेश मामलों के जानकार जाने माने हैं। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जाने माने जानकार। ये तमाम लोग हमारे साथ हैं। संजीव जी ये बताइएगा कि ये दौरे हैं, 2 दौरे, अमेरिका के दौरे से शुरुआत करते हैं। मिस्र काहिरा पहुंच चुके हैं। अमेरिका के दौरे की अगर बात की जाए, खत्म हो चुका है दौरा, कई समझौते हुए हैं, कई मामलों पर एक सहमति बनी है। कितना आगे आने वाले वक्त में अमेरिका भारत के रिश्तों में आप कितना बदलाव देखने वाले हैं? संजीव जी से शायद मेरी आवाज़ अभी नहीं पहुंच रही है। रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह इस वक्त हमारे साथ हैं। मेजर शाह आप बताइएगा कि कितनी तब्दीली अब भारत और अमेरिका के रिश्तों में देखने को मिलेगी? भाई इसमें बड़ा अच्छा सवाल है आपका। और तब्दीली तो हमारे रिश्ते अमेरिका से और अन्य देशों से वैसे ही अच्छे थे, मगर रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको एक बार नहीं, इन पे काम करना चाहिए, तभी रिश्ते और पुख्ता होते हैं। तो इसमें तो अच्छी बात है कि हमारे चाहे डिप्लोमेसी हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे ट्रेड हो, हमारे रिश्ते अमेरिका से और पुख्ता हो रहे हैं। और अभी हम मिस्र की बात भी कर रहे थे, तो मिस्र में प्रेसिडेंट नासिर और जवाहरलाल नेहरू उन्होंने रिश्ते पुख्ते किए थे बहुत पहले, और वो रिश्ते अभी भी मिस्र के साथ हमारे बड़े अच्छे चल रहे हैं। तो हम हिंदुस्तान जब दोस्ती करता है किसी से भी, तो दिल खोल के पूरे दिल से दोस्ती करता है। जैसे कि आप देख लीजिए हमारे दिली रिश्ते हैं हमारे नेपाल से, भूटान से, रूस से, और हम मतलब की दोस्ती नहीं करते हम। जैसे कि चीन ने मतलब की दोस्ती करी पाकिस्तान से सी पैक के लिए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए, मगर जब पाकिस्तान पे मुसीबत आई तो चीन ने बोला पीछे मुड़, तेज चल, दौड़ के चल। अपनी एम्बेसी का एक पूरा कंसुलेट बंद कर दिया चीन ने जी। ऐसा हिंदुस्तान जो है वो खड़े रहता है,
और जो दोस्त हिंदुस्तान के हैं, जो ठीक है, अन्य हम देश अपने हैं, बारे में तो ये कह सकते हैं, लेकिन अमेरिका के बारे में ये नहीं कह सकते। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए, अमेरिका के साथ हमारी हिंदुस्तान की दोस्ती अच्छी हुई है। देखिए, जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, तब उस टाइम पे प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने क्या कहा था, उन्हें ये कहा था कि हिंदुस्तान की जो टेक है इस युद्ध की, वो शेकी है, हिंदुस्तान की स्टैंड शेकी है। लेकिन एक बैकलैश आया उनके पास, क्योंकि बाद में हमारे विदेश मंत्री ने भी इसके बारे में, जयशंकर साहब ने भी बड़े अच्छे से इनका जवाब दिया था। बाद में फिर एक क्लैरिफिकेशन भी आया अमेरिका से। आप ये बात भी देख लीजिए, आज की तारीख में अमेरिका को हिंदुस्तान की ज्यादा जरूरत है जितनी ज्यादा हिंदुस्तान को अमेरिका की होगी जी, बेसिकली। चलिए सीधे दुबई चलते जो हैं। बाइडेन दुबई का- से अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार आसिफ रमीज हमारे साथ हैं। आसिफ रमीज दाऊदी जी, आसिफ रमीज जी, कैसे, क्या कहा जाए, जो मिस्र का दौरा है उसमें क्या संभावनाएं हैं, दोनों मुल्कों के बीच किस तरह के अब और आगे के लिए रिश्ते बनेंगे? कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने हैं, कई समझौतों पर सहमति होनी है। देखें, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, कई समझौते होंगे और कई नई चीजें, और जैसे अभी कह रहे हैं ना, न्यू एरा, अभी प्रधानमंत्री ने भी अपने एड्रेस में, जो कांग्रेस में एड्रेस किया था यूएस कांग्रेस में, वहां भी कहा दिस नॉट द एरा फॉर वॉर, ये वॉर का है नहीं, दोस्ती करने का, मोहब्बत का, पीस का, और वसुदेव कुटुंबकम का जो हमारा एक वन अर्थ वन फैमिली का, उसको देखते हुए आप देखें कि इंडिया से शुरू हुआ, फिर अमेरिका सब, इजिप्ट का जो एक वो है, बहुत ही एंशियंट एक इसका सिविलाइजेशन इंडिया की तरह, और इस इलाके में एक गेटवे ऑफ अरब वर्ल्ड कह सकते हैं और अफ्रीका कह सकते हैं। वहाँ पे अभी हमने देखा है कि ठीक है, 1997 से अभी तक में किसी भी प्राइम मिनिस्टर का इस तरीके से स्टेट गेस्ट की हैसियत से नहीं। हालांकि 2009 में मनमोहन सिंह जो है प्रधानमंत्री उस वक्त के तत्कालीन, वो नैम का एक की मीटिंग्स और उसमें मल्टीलैटरल्स कई चीज़ें रहती, उस पर जाना हुआ। लेकिन ये जो एक इतने ज़माने के बाद ये विजिट जो एक्सपेक्टेड है, वो इसलिए कि अभी आपने देखा अर्लियर दिस ईयर 26 जनवरी के मौके पे किस तरीके से भारत ने वहाँ के सदर अल-सीसी को वहाँ वेलकम किया चीफ गेस्ट की हैसियत से। उस वक्त भी हमें लग रहा था कि ये जो एक फैसला है, ये इस चीज़ को नज़र में रखते हुए किया गया है कि इस इलाके की जो एक जियोपॉलिटिकल अहमियत और इजिप्ट का जो एक रोल है, और इजिप्ट की अपनी भी खुद एक ज़रूरत है। आपने देखा कि यूक्रेन और रशिया के वॉर के बाद जो सप्लाई चेन के और दूसरे जो डिस्टर्बेंसेस रहे, उसका असर इजिप्ट के अंदर भी देखने को मिला। अब इसमें जो चीज़ें होने वाली हैं, आई मीन 26 जनवरी के मामला के वक्त से लेकर और अभी तक और उससे पहले, हालांकि रिश्ता बहुत हिस्टोरिकल है, लेकिन अभी अलग अलग तरीके से रिश्ते को और ज़्यादा बरगाड़ और संजय जी हमारे साथ हैं। संजय की जा रही है दोनों तरफ से। ठीक है। और उसमें मैं एक अहम चीज जो आपने अभी सवाल किया था बता दूं कि इसमें बहुत सी नई चीजें और खुलेंगी, नए दरवाजे और खुलेंगे, और बिजनेस और ट्रेड का तो मामला और भी ज्यादा बढ़ेगा। जब हम बार्टर ट्रेड की बात कर रहे हैं, उसके बारे में भी सुन रहे हैं, उस पर बात आएगी। और जो हमारे वहाँ पे इजिप्ट के साथ जो एक रिलेशन है, उस रिलेशन में जाहिर है कि इससे बहुत ज्यादा और मजबूती देखने को मिलेगी आने वाले ठीक है। दिनों संजय में। जी ये बताइएगा, देखने संजय राणा हमारे साथ हैं, जाने माने विदेश मामलों के जानकार हैं। संजय जी ये बताइएगा कि मिस्र खुद काफ़ी एक सियासी बहरान का शिकार रहा, वहाँ खुद काफ़ी उठापटक सियासी तौर पर रही। मुस्लिम ब्रदरहुड ने काफ़ी वहाँ पर लोकप्रिय हो गया था। उसके बाद जिस तरह से उस पूरे आंदोलन को काबू किया, अब्दुल फतेह अल-सीसी वहाँ पर उन्होंने बागडोर संभाली सत्ता की। ऐसे में भारत के साथ रिश्ते कितने मजबूत होंगे अगर हम वहाँ पर पब्लिक की बात करें, वहाँ पर सरकार की बात करें, और कितना सहयोग भारत का उम्मीद कर रहा है मिस्र? और देखिए, अगर आप बात करते हैं मिस्र की, तो उसमें दो तरह से मैं इसको देखता हूँ। एक हो जाता है कि आपके राजनीतिक समीकरण, दूसरे हो जाते हैं कि आपके बिजनेस समीकरण। देखिए, आज का जो माहौल है वो है ट्रेड, ट्रस्ट एंड टेक्नोलॉजी का। तो ट्रेड करना है बहुत जरूरी है, एक दूसरे पे ट्रस्ट करना है बहुत जरूरी है, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करना भी बहुत जरूरी है। जब हम बात करते हैं कि हमें उनसे क्या लाभ होगा, तो ये बताना चाहता हूँ कि स्विस जो कैनाल है बहुत इंपॉर्टेंट रूट हो जाता है ट्रेड के मकसद से, और हिंदुस्तान कहीं ना कहीं उसमें अपने एक स्पेस
चाहता है। और जो अभी प्रधानमंत्री जाके मिलेंगे, अभी जो हमारा बिजनेस हो रहा है टोटल, वो तकरीबन $7 बिलियन का हो रहा है। ये 75 साल का के बता रहे हैं, पिछले 75 साल से हम कर रहे हैं। तो उसको ट्रेड में हमने डेवलपमेंट करने की जरूरत है। जो ट्रेड है उसका ट्रिपल भी हो सकता है, पता नहीं इसमें क्यों नहीं हुआ, इसमें हो सकता है, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो उनके साथ हम व्यवहारिक तौर पर कर सकते हैं। जब हम आते हैं डिफेंस में, तो डिफेंस में बहुत सारी चीजें आपने देखी है हमारे देश से। तेजस की बात करते हैं, देखिए जी का लिंक तेजस से है और तेजस का लिंक मिस्र से है। तो कहीं ना कहीं हमें जो दो देशों ने ऑर्डर दिया है तेजस के लिए, वो एक इजिप्ट है और दूसरा हमारा मलेशिया और तीसरा फिलीपींस से बातचीत चल रही है। तो बहुत सारे डिफेंस डील होने के चांसेस है। मुझे लगता है तेजस पे डील होगा, हमें लगता है कि स्पेस टू एयर टू जमीन से सतह से आसमान में मार करने वाली मिसाइलों का डील हो सकती है। और दूसरे डील भी चांसेस है जिसमें $1 बिलियन की डील हो सकती है, जो मिस्र और भारत के बीच में। ये हो गया डिफेंस के बारे में। लेकिन अगर आप उसकी ज्योग्राफिकल चीजें देखें तो देखिए ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका एक तरह से अगर शुद्ध हिंदी भाषा में बात की जाए तो वर्जिन कॉन्टिनेंट कहा जाता है, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी ऑफ बिजनेस बहुत ज्यादा है। और भारत जिस तरह से ट्रेडिंग कर रहा है, जिस तरह से ट्रेडिंग मतलब दूसरे सेंस में ना ले, ट्रेडिंग मतलब जो बिजनेस सेंस में जा रहा है, और जिस तरह से कूटनीतिक लोगों से जुड़ता जा रहा है, वो देख रहा है कहाँ पे हम क्या बेच सकते हैं और कहाँ से हम क्या खरीद सकते हैं। देखिए वो टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण यूएस से कर रहा है और वही टेक्नोलॉजी को मिस्र को बेच रहा है। और मिस्र ऐसा होता था कि एज एन इंडियन, maybe our passports are not very well recognized outside the country, but now for the last 7-8 years, you feel proud whenever you say you are Indian. I mean, definitely. And abhi dekhiye the way that India is growing, hamara jo economy, the way that we are expanding, and the level of support wherever Narendra Modi goes. I mean, abhi right now he is in United States. The way unka jo reception ho raha hai, that shows the largest and the biggest economy in the world नरेंद्र मोदी जी को इतना ग्रैंड वेलकम कर रहे हैं। सो इट्स अ वेरी बिग इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर बीइंग एन इंडियन, एंड हम लोग बीइंग एन इंडियन कम्युनिटी वी आर वेरी मच एक्साइटेड टू सी हिम। मे बी शी वुड लाइक टू से समथिंग एज वेल। आपका क्या नाम है? मैं मधुस्मिता मोहंती। Yeah, since 17 years we are here and today is a very proud moment for us कि हम मीट करेंगे अभी हमारे मोदी जी को। As an Indian, you are living here in Egypt for so long time. Yeah. How do you feel when your Prime Minister, Indian Prime Minister, is here? And Egypt has already very good relationships for long. Yeah, actually this is our second home now, I can tell you. And respect जो यहाँ पे मिलता है हमें as an Indian, I mean this is amazing. And for that reason शायद हम लोग इतने साल से यहाँ पे रह पा रहे हैं and wish के रहें, मतलब मोदी के आने के बाद क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इजिप्ट और इंडिया के रिलेशन, आप लोगों के होपफुली बहुत स्ट्रॉन्ग होगा डेफिनेटली, क्योंकि मोदी जी का जो एक उनका जो एक पावर है, डेफिनेटली वो एक कनेक्शन जो है डेफिनेटली बहुत अच्छा कनेक्शन रहेगा। इन एडिशन एक्चुअली आई मीन इफ आई कैन ऐड कि पहले से इंडिया और इजिप्ट का रिलेशन बहुत अच्छा था, बट मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं, आई एम श्योर दैट बोथ दी कंट्रीज विल बेनिफिट। एंड हमारा जो इम्प्रेशन है बीइंग एन इंडियन, वो बहुत अभी जितना मीडिया में चल रहा है कि मोदी जी आ रहे हैं, एंड ऑब्वियसली we are very much excited, and I'm sure that it is going to be more stronger also in the coming days, and I'm sure that Modi ji is going to announce a lot of good projects and all. So obviously between the two countries हमारा relation बहुत strong हो जाएगा। Thank you so much. Thank you. I am Deepti Singh, President of Indian Community Association Egypt. Prime Minister will be here in a moment. Yes. How do you feel? तो ये सीधी तस्वीरें आ रही थी कायरो से, जो वहाँ पर इंडियन कम्युनिटी है, वहाँ पर किस तरह से स्वागत के लिए पलके बिछाए बैठे हैं लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँच गए हैं और अब उनसे मुलाकात भी होगी। प्रधानमंत्री जो वहाँ पर भारतीय समुदाय रहता है मिस्र में, उनको बहुत सारी उम्मीदें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हैं, इस दौरे से हैं। नेहा, आपके पास मैं आना चाहूँगा। नेहा जी हमारे साथ हैं, नेहा सिन्हा, विदेश मामलों की जानकार है। नेहा जी बताइए, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अगर देखा जाए, पहले भारत की छवि थी कि हम आयात करते थे उपकरण, रक्षा उपकरण आयात करते थे, हथियार हम आयात करते थे, लेकिन अब भारत उस पोजीशन में है जब हम रक्षा उपकरण और हथियार निर्यात करने की पोजीशन में हैं। तेजस का भी जिक्र कर रहे थे संजय जी। जी देखिए, पहले तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इजिप्ट की लोकेशन क्या है और इजिप्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए। यूएस के बाद इजिप्ट ही क्यों? ये जो ज्योग्राफी ऑफ इजिप्ट है,
ये रिलेट करता है दो रीजन के साथ, एक नॉर्थ अफ्रीका और दूसरा साउथ वेस्ट एशिया। और इजिप्ट की जो कोस्ट लाइन है वो मेडिटेरेनियन सी, रिवर नाइल और रेड सी आप देखेंगे तो इजिप्ट की लोकेशन काफ़ी स्ट्रैटेजिक है। और इसके बॉर्डरिंग नेशन में आप देखेंगे तो लीबिया है, गाजा स्ट्रिप है, इजराइल है, सूडान है। तो ये सारा जो लोकेशन है, ये सबसे हमें ये समझ आना चाहिए कि इजिप्ट की लोकेशन स्ट्रैटेजिकली कितनी इंपॉर्टेंट है, खासकर इंडिया के लिए। और आज के सदी में इजिप्ट इट इज़ द मोस्ट पॉपुलस अरब कंट्री और काफ़ी इन्फ्लुएंशियल स्टेक होल्डर है अरब वर्ल्ड में, जो कि ये बहुत ही ज़रूरी बात है जो हमें समझना चाहिए कि इसकी लोकेशन क्योंकि बहुत ही स्ट्रैटेजिक है और एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रीजनल प्लेयर माना जाता है, जो रिफ्लेक्ट भी करता है एस्पिरेशन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। तो आज इंडिया की ये भी चाह है कि वो अपनी इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट गल्फ रीजन में और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए और स्ट्रेंथन करे अपना लुक वेस्ट पॉलिसी पीस और स्टेबिलिटी के लिए। और यहाँ पे इजिप्ट जो है इट फॉर्म्स अ की वेक्टर इन दिस इक्वेशन। जहाँ तक इंडिया इजिप्ट के रिलेशन की हम बात करते हैं, आज मोदी जी जो कायरो लैंड किए हैं, ये पहली विजिट है बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर आफ्टर 1997, ये हमें पता है। भारत और मिशन ने हाल ही में राजनीतिक, सुरक्षा, रक्षा, ऊर्जा और आर्थिक पहलुओं को शामिल करते हुए अपनी द्विपक्षीय संबंधों को राजनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने की तरीके पर सहमति व्यक्त की है। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इट्स नॉट ओनली डिफेंस। आप जैसे जिस तरह से हम अभी यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन से एरिया में कोऑपरेशन देखने को मिल रहा है, बहुत सारे एरिया हैं, कारोबारी बिजनेस की बात भी होगी, डिजिटलाइजेशन आप देखेंगे तो अभी एयर कनेक्टिविटी की बात हो रही है। हम बस डिफेंस पे नहीं फोकस कर सकते, देयर आर अदर एरियाज वेयर आवर प्राइम मिनिस्टर वुड बी फोकसिंग। स्टूडेंट मुफ्ती शमून कासमी साहब हमारे साथ हैं, जाने माने मुस्लिम गुरु हैं। शमून कासमी साहब, ये बताइएगा कि दाऊदी बोहरा समुदाय से एक खास रिश्ता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। भारत में भी कई कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री शामिल होते रहे हैं। अब मिस्र में भी देख रहे हैं, मिस्र में एक शिया मॉस्क है, मस्जिद है अल हकीम मस्जिद, वहाँ पर भी प्रधानमंत्री जाएंगे, जिसको बहाल किया दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों ने। कैसे रोशनी डालेंगे आप इस रिश्ते पर? देखिए, मोदी जी का ताल्लुक दाऊदी बोहरों से ही नहीं है, समस्त मानव जाति से है। और मैं आज आपके इंडिया न्यूज़ के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने प्रोपेगेंडा किया था मोदी जी के बारे में कि मोदी जी किसी एक समुदाय से दूरी बनाते हैं या उनसे नफरत करते हैं, उन्होंने अपने प्रैक्टिकली तौर से, अमली तौर से इस बात को नकारा ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व को बताया कि वो विश्व एक धरोहर, विश्व को धरोहर समझते हैं और पूरे विश्व से प्यार करते हैं और पूरे विश्व को शांतिमय देखना चाहते हैं। जहाँ तक दाऊदी बोहरों का ताल्लुक है, मैं आपको ये बता दूं कि मुसलमानों का एक जो अलग अलग मसलक हैं, उसमें से एक दाऊदी बोहरा भी हैं। और मेरे सैयदा मुफज्जल साहब, उनसे मेरे पर्सनल अपने ताल्लुकात हैं। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे और आज जामिया मिलिया इस्लामिया के चांसलर हैं। और मैं उस वक्त कोर्ट में था, हमने भी एक वोट हमने सर्वसम्मति से उनका चुनाव किया था कि वो हमें दो टर्म अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे हैं। और वही नहीं, उनके दादा रहे, उनके फादर रहे। ये एक सिलसिला जो है एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ रहा है। आज भी जामिया मिलिया इस्लामिया के एज ए चांसलर के सैयदना मुफज्जल को सुशोभित करते हैं चांसलरशिप को। और मोदी जी से इतना उन्हें स्नेह और प्यार है। और मैं समझता हूं कि मोदी जी जब भी कोई फंक्शन होता है सैयदना मुफज्जल साहब करते हैं, चाहे वो इंदौर में करें तो वो ऐसा, चाहे वो मुंबई में करें, और उनके हर प्रोग्रामों के अंदर मोदी जी उस भाव से शरीक होते हैं कि वो अपने आप को उस परिवार का हिस्सा कहते हैं। और मैं आज ये बात कहना चाहूंगा कि वसुधैव कुटुंबकम, अभी हमने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को मनाया, तो जिसका नाम ही वसुधैव कुटुंबकम था, और उसे आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आरोप लगते रहे कि पूरे विश्व को स्वस्थ रखने के लिए पूरे विश्व के पटल पर अगर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनवाया, जो हमारे संतों की, हमारे सूफियों की, हमारे बुजुर्गों की धरोहर, चलिए आपसे बातचीत करेंगे। पूरे विश्व के अंदर अगर किसी ने मान्यता दिलाई तो आदरणीय प्रधानमंत्री जिस छवि की आप बात पहुंचाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काहिरा पहुंच चुके हैं। 3 दिवसीय उनका राजकीय दौरा अमेरिका का था, उसके बाद 2 दिवसीय राजकीय दौरा उनका मिस्र का है। कई समझौतों पर दस्तखत होने हैं, कई समझौतों पर सहमति बननी है। यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ हैं। इसके अलावा हमारे साथ आसिफ रमीज दुबई से, आसिफ रमीज दाऊदी हमारे साथ दुबई से जुड़े हुए हैं। आसिफ साहब, आप बताइएगा
कि दाऊदी बोहरा समुदाय से खास रिश्ता प्रधानमंत्री का। यही सवाल मैं पूछ रहा था, शमून कासमी साहब हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में थे। इस खास रिश्ते की क्या वजह देखते हैं आप? वैसे तो सभी से, पूरे देश से उनका रिश्ता है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। देखें, जहां तक वजह का सवाल है, आपने जैसा खुद ही कहा कि क्या खास वजह देखते हैं, ये रिश्ता पुराना है। मेरा ख्याल है कि हम सब जानते हैं कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे उसके पहले से ही इस खास कम्युनिटी से काफ़ी गहरा ताल्लुक़ रहा। और आपको याद भी होगा कि एक किसी प्रोग्राम में जब वो मौजूद थे प्रधानमंत्री खुद, तो उन्होंने ये भी कहा बड़े प्यार से कि देखें, मुझे आप सब लोगों से एक शिकायत है कि आप क्यों हमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तरह से एड्रेस करते हैं, मैं आपके फैमिली का एक हिस्सा हूँ। ऐसा कहते हुए बहुत कम जगहों पे सुना जाता है और वो दिखा है वो रिलेशनशिप जो आपने करने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी अहम चीज़ ये है कि दाऊदी बोहरा जो एक कम्युनिटी है, ज़्यादातर आप देखें कि बिजनेस कम्युनिटी है और ये गुजरात के अंदर बहुत ज़्यादा इनका बिजनेस और इनका वहाँ पे एक अच्छी खासी तादाद में वहाँ है गुजरात के अंदर, और ये एक दूसरा कनेक्शन है। मैं चूँकि इंटरनेशनल लेवल पे भी देखता रहता हूँ, तो कुवैत में था मैं 5 साल, वहाँ पे भी मैंने देखा जो ये एक कम्युनिटी है, इतना स्ट्रॉन्ग और इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है। और जब मैं उस वक्त था 2001 से 2005 के दरमियान, तो उस वक्त भी जो सैयदना वहाँ आए थे, तो वहाँ के जो किंग थे वो खुद आकर वहाँ उन्हें वेलकम किया और पूरी तरह से वहाँ एक अजीब तरीके का माहौल था। ये एक दूसरी चीज़ थी। तो एक कनेक्ट है जो उसकी कई वजह हैं, और 2-3 वजह तो मैंने आपसे बताई। और तीसरी चीज़ ये है कि आप ये देखें कि मुझे लगता है कि एक जो मुस्लिम आउटरीच जो होता है, शायद उसकी वजह कर इस कम्युनिटी से और ज़्यादा भी एक लगाव दिखता हो और एक बड़ी वजह बनती हो। और अभी जो ये मिस्र जा रहे हैं, और मिस्र में जो दूसरे दिन इनका प्रोग्राम है, और वो इतनी जो पुरानी 11वीं सदी के वक्त की जो वहाँ की मस्जिद है, अल हकीम मस्जिद, वहाँ पे ग्रैंड मुफ्ती से भी मुलाकात का उनका प्रोग्राम है। ग्रैंड मुफ्ती से भी मुलाकात का प्रोग्राम है। जो और विचारक हैं, जो धार्मिक व्यक्ति वहाँ पर हैं, उनसे भी मुलाकात का प्रोग्राम है। नेहा जी, एक चीज़ बताइएगा, एक अहम सवाल ये है कि पहले अगर हम अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करें, अगर हम बात करें यूरोपियन कंट्रीज़ की या अमेरिका की हम बात करें, तो पहले एशिया में जो सेंट्रल एक पावर के रूप में देखा जाता था वो चाइना को, अब वो फोकस शिफ्ट हो रहा है इन महाद्वीपों के मुल्कों का, देशों का। ये कितना बड़ा शिफ्ट है, और वो शिफ्ट आ रहा है भारत की तरफ। जी देखिए, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का, और जिस तरह से आप चाइना को बीच में ला रहे हैं, अगर चाइना का हम बात करें तो चाइना का इंगेजमेंट भी काफ़ी डीपन है और काफ़ी ज़्यादा है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे। पर हम ये भी जानते हैं जिस तरह से एंगेजमेंट हो चुका है और जिस तरह से हमने डेथ ट्रैप पॉलिसी के बारे में जाना है चाइना को लेकर के, तो वहाँ पे हम इंडिया का अगर बात करें और जिस तरह से इंडिया की तरफ इंक्लिनेशन रहा है और जिस तरह का इंडिया का एंगेजमेंट रहा है इन देशों के साथ, वहाँ पे एक गुडविल पर्सपेक्टिव भी आता है, वहाँ पे एक ट्रस्ट फैक्टर भी आता है। और जिस तरह से एंगेजमेंट, जिस तरह से इनिशिएटिव लिया जा रहा है इन देशों में अपना होल्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए सरकार की ओर से, दैट इज कमेंडेबल। वो डिफरेंट है, वो इस तरीके से किया जा रहा है जो कि एक म्यूचुअल बेनिफिट, एक म्यूचुअल ट्रस्ट के तौर पे हम देख रहे हैं कि पार्टनरशिप सारी कंट्रीज के साथ बिल्डअप हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक डिफरेंस देखते हैं बाकी देशों के। यूके देवनाथ जी के पास में जाना चाहूंगा। यूके देवनाथ जी, माफी चाहता हूँ, काफी इंतजार आपको करना पड़ा, बहुत सारे मेहमान क्योंकि हमारे साथ इस शो में हैं। आप बताइएगा कि क्या ये शिफ्ट जो है और कितना अहम है ये शिफ्ट, पावर शिफ्ट, अगर लोग ये मान रहे हैं, दूसरे देश ये मान रहे हैं, अफ्रीकन कंट्रीज या यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिका खुद ये मान रहा है कि अब एशिया में पावर शिफ्टिंग की ज़रूरत है, पावर शिफ्ट करना चाहिए, तो ये शिफ्ट भारत के मद्देनजर कितना अहम है? देखिए, भारत जो है वो इनफॉर्मली डिक्लेयर्ड माना जा रहा है कि ग्लोबल साउथ का लीडर है। नैन के समिट के वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी ने बार बार ये कहा कि
G20 की जो मीटिंग हुई उसमें भी उन्होंने ये चीज को आगे बढ़ाया कि अफ्रीका के देश खासतौर से जैसे इजिप्ट है, उनकी एक ग्लोबल अपील है, उनको एक रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। और खुशी की बात यह है कि जब मोदी जी अभी अमेरिका गए तो मोदी जी के इस सजेशन को कि अफ्रीका के देशों को भी G20 में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, इसको काफी तवज्जो दी। एक बात जो इजिप्ट के साथ बहुत इम्पोर्टेंट है और भारत के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि दोनों ही देश पहले रूस के साथ बहुत मित्रतापूर्वक संबंध मेंटेन करते थे और अब दोनों ही देश अमेरिका के साथ दोस्ती निभा रहे हैं, बहुत मजबूत दोस्ती अमेरिका के साथ निभा रहे हैं। चीन जो है इसमें थोड़ी सी छटपटा रहा है, उसको लग रहा है कि वो एशिया में और ग्लोबल एरेना में विश्व का लीडर बनना चाहता है। उसे लगता है कि भारत शायद उसको यहाँ चैलेंज कर रहा है। ऐसी बात नहीं है, भारत किसी को चैलेंज नहीं करना चाहता। मैं आपको मिस्र के बारे में बता रहा था कि मिस्र, जैसे नेहा जी ने बताया, कि जियोग्राफी की बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पर लोकेटेड है, इसीलिए भारत की फौज के लिए भी मिस्र बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन अलाइंड मूवमेंट के दौरान ही मिस्र ने, मार्शल टीटो थे यूगोस्लाविया में और सुकार्नो थे इंडोनेशिया में, सबने एक कोशिश की थी कि ये सारे कंट्री एक साथ रहेंगे और ना तो पश्चिम में नेटो की तरफ झुकेंगे, ना पूर्व में वार्सा पैक्ट की तरफ झुकेंगे। फौज में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि हमारी एयरफोर्स के पायलट्स ने कई सालों तक 70 और 80 के दशक में इजिप्शियन एयरफोर्स को ट्रेनिंग दी थी, क्योंकि इजिप्शियन एयरफोर्स और हमारी एयरफोर्स की जो इन्वेंट्री पैटर्न थी, ज्यादातर रशिया डिपेंडेंट एयरक्राफ्ट और मिसाइल सिस्टम थे, तो हमने उनको काफी अच्छी ट्रेनिंग दी थी। अभी भी इजिप्ट के जो डिफेंस अटैची हैं, उन्होंने पिछले कुछ सालों में तेजस, ब्रह्मोस, आकाश, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट, इनकी जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं उनको विजिट किया है। एक छोटी सी डायलेमा आ जाती है डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपोर्ट ऑफ वेपन में, कि इजिप्ट अगर हमसे ये हथियार लेगा तो उसका इस्तेमाल वो किसके विरुद्ध करेगा। इजराइल को लगता है और अमेरिका को लगता है कि ऐसा ना हो कि भारत इन हथियारों को इजिप्ट को एक्सपोर्ट करे और इजिप्ट भविष्य के किसी युद्ध में इन्हीं हथियारों के इस्तेमाल से इजराइल को चोट पहुंचाए। तो शायद अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे और इजिप्ट अगर राजी भी हो जाता है हमसे लेने के लिए, ये यूएस और इजराइल को सर्वसम्मति से ऑन बोर्ड लेने के बाद ही हम इन वेपन सिस्टम्स को इजराइल को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। जी। एक छोटी सी मेजर शाह, मैं आऊंगा यूके जी आपके पास। मेजर शाह, ये बताइएगा कि कहा जा रहा है कि रडार टेक्नोलॉजी आपस में सहयोग बढ़ रहा है अमेरिका और भारत का। इसके अलावा मिस्र की बात हो ही रही थी कि मिस्र को भी आपस में तालमेल बैठाएंगे भारत और मिस्र, रक्षा उपकरणों की का जहां तक सवाल है। इसके अलावा अगर अमेरिका की बात करें तो जेट इंजन को लेकर जो समझौते हुए हैं, या रडार टेक्नोलॉजी को लेकर, एआई टेक्नोलॉजी को लेकर जो तमाम समझौते हुए हैं, उससे बताया जा रहा है कि चाइना और पाकिस्तान काफी परेशान है। जी हाँ, देखिए, पाकिस्तान ने तो स्टेटमेंट भी इशू किया था पहले कि हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर नरेंद्र मोदी साहब अमेरिका जा रहे हैं, प्रोवाइडेड पाकिस्तान के और अमेरिका के रिश्तों के बीच में कोई दरार ना है, उनको फर्क ना पड़े। मैं पूछता हूँ, पहली बात तो क्या रिश्ते हैं ऐसे पाकिस्तान के और अमेरिका के? अमेरिका इनकी इज्जत नहीं करता। पहली बात तो अमेरिका से डेलीगेशन आता है, रावलपिंडी पे उतरता है और इस्लामाबाद में उनके प्रधानमंत्री को भी नहीं मिलते, उनसे भी नोट नहीं फरमाते और चले जाते हैं वापस। ये जमाना पहले था कोल्ड वॉर के टाइम पे, जब अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते बड़े अच्छे थे। हमारे रिश्ते रूस से तो तब से अच्छे रहे थे और बहुत पुरानी गहरी दोस्ती है। अब चीन ने क्या करा है, ऐसा कहा जा रहा है कि चीन ने क्यूबा में एक स्पाई बूथ खोल दिया है और क्यूबा को बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए हैं, ऐसा कहा जा रहा है, और वहां पे स्पाई बूथ खोलने के। इसके अलावा चीन जो है वो सोलोमन आइलैंड से दोस्ती कर ली है। सोलोमन आइलैंड जो कि 900 छोटे छोटे द्वीप हैं और एक बहुत बड़ा द्वीप है, क्योंकि सोलोमन आइलैंड्स में अक्सर क्या होता है कि पायरेट, क्योंकि इतना स्कैटर्ड है ना, तो डिफिकल्ट है, मुश्किल है कमांड कंट्रोल करना। पायरेट प्रॉब्लम, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, बहुत सी डकैतियां, बहुत सी चीजें होती हैं वहां पे। तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा था हम आपकी रक्षा करेंगे, हमारे साथ पैक्ट साइन कर लो। हम पैक्ट साइन कर लिया। अब चीन उसमें अड़ंगी डालता है। तो चीन, अगर आप ज्योग्राफिकली देख रहे हैं, सोलोमन आइलैंड का पड़ता है ईस्ट में, मगर क्योंकि दुनिया गोल है तो वहीं घूम के
सोलोमन आइलैंड्स तो चीन पहुंचेगा अमेरिका के पास में, उन पे नजर रखने के ठीक है। लिए। शमून कासमी साहब, थोड़ी देर पहले जो आपसे बातचीत हो रही थी उसी पर मैं आऊँगा। और आप कह रहे थे कि नफ़रत का एक माहौल बना रहे हैं हमारे देश में कुछ लोग हैं जो नफ़रत का माहौल प्रधानमंत्री को लेकर बनाते हैं। कौन हैं वो लोग, क्यों बनाते हैं, इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? आपका अपना मत है ये। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा नासिर इकबाल साहब, बहुत आप पीछे जाएं थोड़ा सा और भारतीय इतिहास को पढ़ें आप, तो 1919 में कुछ मुस्लिम जमातें बनती हैं और 1925 में आरएसएस की बुनियाद रखी जाती है। आरएसएस ने अपने डिफरेंसेस को ख़त्म करके मानवता को के लिए जो कार्य किए, उन्होंने जगह जगह अपने आप को स्वयं सेवक संघ के नाम से उन्होंने प्रचलित किया और जहां भी कहीं आपदाएं आई उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। मेरी मालूमात के मुताबिक, जहां तक मैंने रिसर्च किया है, इसी तरह से मुस्लिम जमातों को भी पूरा फलने और फूलने का हक था, क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी के अंदर रहते हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका के अंदर ये बात कही, कितने स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं और डेमोक्रेसी के अंदर हम कोई भेदभाव नहीं करते। लेकिन सवाल जो उनसे पूछा गया, जी, लेकिन जो उनसे सवाल पूछा गया वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार ने, वो भी इसी बात को लेकर था जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। मैं उसी को बहुत बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं ताकि हिंदुस्तानी समाज के लोग, हमारे मुसलमान भाई पूरे विश्व के इसे समझने का प्रयास करें। आप देखिए, जब से नरेंद्र मोदी जी आए 2014 से, मैं आपको यह बता दूं कि 2014 से अब तक पूरा भारत दंगा मुक्त है। आपको उसका फायदा मुसलमानों को और आम हिंदुस्तानियों को क्या हुआ कि पीस होने की वजह से हमारे बच्चे लिखने और पढ़ने में लगे। खासतौर से मुसलमानों को फायदा ये हुआ कि 30, 35, 37 बच्चे लगभग जो है हर साल यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं और वो यूपीएससी करने के बाद वो मुख्य धारा से जुड़ेंगे। चलिए, समय की कमी है शमून साहब, समय की कमी है। ठीक है, समय की कमी है। अब माफी चाहता हूं आपसे, समय की कमी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।